This is very auspicious day. Today, on the birth anniversary of Mahatma Gandhi ji, I am presenting this spiritual based fabulous bhajan of his childhood days. इस भजन के रचयिता श्री नरसिंह मेहता जी हैं और यह भजन जीवन भर गांधी जी के बचपन से लेकर उनके संघर्ष के दिनों तक प्रेरणादायी रहा। आइए इस भजन को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाड़े रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी ते नीरे। वैष्णव जन तो तेने कहिए समदृष्टि ने कृष्ण त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, परदन नव जले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। अपना भाषण प्रस्तुत करें गांधी जी की शिक्षा पर, उनके सिद्धांत पर। So, Akansha, please. Good morning to one and all present over here, respected principal ma'am, teachers. Myself Akansha, and today we have gathered here to celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. As you all know that every year 2nd October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi is celebrated, who devoted his whole life to India's independence by using his strong weapon, nonviolence. Not only in India, but it is celebrated in the whole world as International Day of Nonviolence. It is celebrated to remember his principles of peace, non-violence, and to educate and inspire the present generation about the contribution made by Gandhiji to make India an independent country. In his honor, UN Assembly has announced this day as International Day of Non-Violence on 15th June 2007. Gandhiji made many social movements like Satyagraha movement, Dandi March, and non-cooperation movement also. He always preferred to wear khadi clothes and never accepted the British culture. He always accepted the traditional culture of India. He always encouraged the people of India to have faith in themselves and fight for their right. Because of his devotion and struggle, India got freedom. A speech is not enough to speak about Gandhiji's values and deeds, but we as the future of generation should honor him by living our life with his principle of peace, non-violence, positive thinking, cleanness to the next guidelines, and leading to our country to an incredible nation. At last, I want to conclude my speech by his famous quote, that is, be the change you want to see in the world. Thank you. Well said by Akanksha. You might be thinking who I am. I am co-host with my respectable teacher Chauhan sir. For Gandhi ji, his words was his sword, his thought was his bullet. Okay, let's be ahimsawadi and let's move on to next
cultural program. Next, we have a Bharatnatyam by Arpita Kumari of class 6. I request her to please greet us from this program. I would like to call upon Arpita Kumari of class 6 for Bharatnatyam. Arpita, please.
काफी मत भूल लेने जैसा नृत्य। अगर कोई पूछे कि सुंदरता क्या होता है, कोई पूछे शालीनता क्या होता है, या कोई पूछे कि संस्कृति कैसी होती है, तो उसको यह नृत्य जरूर देखना चाहिए। क्या हाव भाव के साथ उन्होंने प्रकट किया। अब अब मैं भारद्वाज सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वह यहाँ पर आए और अपने शब्दों से हम सभी को मोहित कर लें। भारद्वाज सर। भारद्वाज सर माइक ऑन कीजिए। आवाज आवाज माइक ऑन कीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। सर माइक ऑन करेंगे अपना। सर आ रहा है ना सर, आवाज आ रही है ना? सर आपका माइक म्यूट है। हाँ माइक म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज तो आ रही है। हेलो माइक म्यूट। मैं इसको लाइव कर देता हूँ सर, उससे अच्छा।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है मिस? हाँ हमारी Yes, sir. हमारी Yes, sir. हेलो, माननीय प्राचार्य महोदया, मेरे विद्वान शिक्षक साथियों और केंद्रीय विद्यालय CSR भिलाई के प्यारे प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रपिता बापू को शत नमन। शहीदों की मजारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मजारों पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन के मिटने वालों का यही काया निशा होगा। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो बदलाव इस दुनिया में आप देखना चाहते हो, अर्थात आप इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हो, उसे हमें खुद में बदलाव लाना होगा, तभी ये दुनिया खूबसूरत बनेगी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि भविष्य की पीढ़ियां संभवतः विश्वास भी नहीं करेगी, आने वाली दुनिया में कोई इस बात पर विश्वास भी नहीं करेगा कि हाड़ मांस का भी एक व्यक्ति था जिन्होंने बिना किसी हथियार, बिना किसी गोला बारूद के भारत देश को 200 वर्षों की गुलामी से आजादी दिला दी। गांधी जी के विचारों ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि उन तमाम मानस प्रेमियों में करुणा, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोणों को प्रसारित किया और दुनिया को एक नए ढंग से सोचने को विवश किया। उन्होंने अपने समस्त जीवन में सिद्धांतों और प्रथाओं को विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही दुनिया में जो आज तथाकथित रूप से त्याज्य समाज है, जो हाशिए में समूह है, जो अत्यंत निचले स्थान पर है, उन्हें उठाने पर बहुत जोर दिया। आज दुनिया में जो त्याज्य समूह है, जो आज देश की मुख्य धारा में है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो महात्मा गांधी के अतुलनीय प्रयास की देन है। उसने सिर्फ आम लोगों के जीवन को ही नहीं बदला, बल्कि देश के बड़े बड़े नेताओं को, दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं को प्रेरित किया। लोगों ने उनसे प्रेरणा ली, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, आंग सान सूची, दलाई लामा, और आपको अभी याद होगा पाकिस्तान की वो बच्ची, 15 साल की बच्ची मलाया। तो ऐसे लोग भी महात्मा गांधी के आदर्श को पालन करने में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यक्ति गांधी जी के सिद्धांतों में अगर ग्रहण करने योग्य है तो पूरा जीवन उनका ग्रहण करने योग्य है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत को बहुत ही प्रेरक मानता हूं। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक लड़ाई को सत्याग्रह का नाम दिया। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना था। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह कोई भी अपना सकता है। एक छोटे से विद्यार्थी से लेकर के बड़े बूढ़े तक भी सत्याग्रह अपना सकते हैं, और कई बार हम लोग जीवन में अपनाते हैं, घर घर में अपनाते हैं, समाज में अपनाते हैं, देश में अपनाते हैं। तो ये विचार एक ऐसे बरगद के वृक्ष के समान था जिनकी शाखाएं पूरे देश भर में फैली। ग्रेट बनियन ट्री, सत्याग्रह इज अ ग्रेट बनियन ट्री। एक विशाल महान वृक्ष है सत्याग्रह, जो जिसमें दुनिया के लोग झूल रहे हैं, जिसमें दुनिया के लोग अभिप्रेरित हो रहे हैं। तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने जब महात्मा गांधी के इस रवैये को देखा
फैंसी ड्रेस, फैंसी कंपटीशन नहीं उसको। रवि को देखा तो लोगों को समझ में ही नहीं आया कि लड़ाई ऐसे भी लड़ी जा सकती है, चुपचाप भी लड़ी जा सकती है, बिना बोले भी लड़ी जा सकती है। तो महात्मा गांधी के प्रमुख सिद्धांतों में शांति ही एक प्रकार से प्रमुख हथियार था। चाहे उनका बारडोली सत्याग्रह हो, दांडी सत्याग्रह हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो गांधी जी ने इस पूरे लड़ाई में सत्याग्रह को प्रयोग किया। महात्मा गांधी जी इस लड़ाई में सत्याग्रह को एक प्रबल और नैतिक हथियार के रूप में देखते थे। दुनिया देखती थी, दुनिया की मीडिया देखती थी कि आखिर गांधी जी है कैसे पुरुष जो बिना किसी हथियार के अपनी बात को मनवा लेते हैं और बड़े से बड़े सत्ताधीशों को, ब्रिटिश तत्कालीन शासन को झुकने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध और शांति, आतंकवाद, आज जो सामाजिक, राजनीतिक और ये जो विपदा काल है, उसमें अगर इस समस्या का समाधान करना है तो हमें गांधीयान तरीके से समाधान करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी की जो शिक्षा पर जो दृष्टिकोण थी वो भी बहुत व्यापक थी और उनका मानना था कि हमें, हमारा जो विकास होता है, अगर पूरे देश का विकास होगा या समाज का जो विकास होता है, वह चाहे वो सामाजिक रूप से हो या नैतिक रूप से हो, वो शिक्षा पर भी निर्भर करती है। तो शिक्षा पर निर्भर करती अर्थात तमाम जो विकास है शिक्षा पर ही निर्भर है। अगर हम शिक्षा नहीं देंगे तो देश का और समाज का कैसे विकास होगा। और गांधी जी माना करते थे कि अगर किसी भी राष्ट्र को मजबूत और विकसित बनाना है तो उनके नागरिकों को सबल बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, अच्छे चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, उन्हें अच्छे नागरिक बनाने पड़ेंगे, उनको स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, उनका सभी दृष्टि से सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा। मुझे स्मरण आता है जब मैं प्राइमरी कक्षा का विद्यार्थी था तो हमारे प्राइमरी स्कूलों में पहले के ज़माने में तकली और चरखा और थोड़े बहुत खेत भी हुआ करते थे जिसमें हम लोग को काम करने को प्रेरित किया जाता था। उसका मतलब ये कदापि नहीं था कि हम जीवन में तकली चलाएंगे या कपड़ा बुनेंगे। उनका मतलब ये था कि हम इन छोटे छोटे रास्तों से, हम इन छोटे छोटे कदमों से अपने आप को खड़ा कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो शिक्षा नीति जब तत्कालीन शासक भारत सरकार ने 2020 एनईपी के तहत लागू की है, इसमें मातृभाषा भी प्रमुख है और कक्षा 9वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, यह भी गांधीयान सिद्धांत के अनुरूप ही है। अर्थात हम पिछले पन्नों को ही पलट रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने जो आज से लगभग 100 साल पहले जिस चीज की परिकल्पना करी थी, वही कल्पना आज पूरे देश में व्यवहृत की जा रही है, उसको जीवन में उतारा जा रहा है। मुझे लगता है कि गांधी जी सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते थे और यही प्रयास करते थे कि जब सभी लोग मिलकर के सभी का धर्म एक होगा, सभी का ईश्वर एक होगा, तो निश्चित रूप से भारत देश में एकता, सहअस्तित्व, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी। प्यारे बच्चों, आज अक्सर देखा जाता है, अक्सर लोग सामान्य रूप से बात कहते हैं कि वो तो पुराने नेता थे, उनकी बात उनके मृत्यु पर चली गई। आज बड़े बड़े महापुरुषों के कथनों पर, उनकी आस्थाओं पर, उनके सिद्धांतों पर, इस युग के लिए प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जाते हैं। अरे वाह, आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी आस्थाएं, उनके सिद्धांत, उनकी मर्यादा जीवन काल तक, चिरंतन काल तक जीवित रहती है। उनके बताए हुए सिद्धांत जीवन काल तक जीवित रहते हैं, वह कभी मिटता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं, उन्हें अपने लोभ या जो भौतिक रूपी जो सुख साधन के बारे में सोचते हैं, उनको गांधीयान को पढ़ना चाहिए और
पढ़ने के बाद ही उनको समझ में आएगा कि गांधीयान क्या है। आज की शिक्षा व्यवस्था में जहां पर मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, मीडिया हावी है, तरह तरह से कुचक्र इस देश में चला करते हैं, विदेशी नीतियां कई बार हम सबको प्रभावित करती है, ऐसे वक्त में हमें गांधी जी बहुत याद आते हैं। प्यारे बच्चों, आज महात्मा गांधी की पूरे देश में 150वीं जन्म समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों ने प्रतिभाग किया और मुझे ये अवसर दिया। मैं आप सबका आभारी हूँ और मैं अपने वाणी को इसी 2 पंक्ति पर विराम देता हूँ कि सैकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे। सैकड़ों परिंदे आसमान पर आज नजर आने लगे। बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से उड़ने की। बलिदानियों ने दिखाई है राह उन्हें आजादी से उड़ने की। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हम लोग बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर। सर, आपका नादमय उच्चार और स्वरों की निर्मलता तो सीधा हृदय में घर कर गई। धन्यवाद सर। हम वहां पर नहीं थे जब गांधी जी थे, परंतु हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें प्रतीकात्मक रूप से वह देखने को मिल सकता है कि कैसे गांधी जी थे, कैसे गांधी जी रहे होंगे। मैं फैंसी ड्रेस के लिए बच्चों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह आए और हमें गांधी जी से जुड़ी हुई झलकियां दिखाए और हमें यह बताए कि गांधी जी कैसे थे, गांधी जी का स्वभाव कैसा था, गांधी जी का पहनावा कैसा था। फैंसी ड्रेस।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इन बच्चों ने हमको समझा दिया कि कोई कभी भी छोटा नहीं होता। वैसे भी इन बच्चों के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो इनको आगे जाके निभानी है। बहुत अच्छे। अब मैं चौहान सर से आग्रह करता हूं कि वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दिल्ली में था स्वच्छ ही स्वस्थ भारत हो है। के इस शौक को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लागू किए, जिसके परिणाम आज हम अपने देश में स्वच्छता प्रति जागरूक हैं। विद्यालय के किया के प्रयासों की झलकियां दिखाने के लिए हम लोग छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता और गांधी जी के इस कड़ी में किया रहा। लीजिए प्रस्तुत। नेक्स्ट। धन्यवाद देवानंद सर। कि वक्त चौहान सर वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या बोलना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम? हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो।
हाँ अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। बोलिए क्या प्रोग्राम कौन सा है, देखिए। हाँ नेक्स्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज के भारत में स्वच्छता के प्रति लोगों में काफी जागरूकता है कि उनका है हर जगह पे देश को महत्व दे रहे हैं। अगर स्वच्छता होगी तभी भारत तो मैं राष्ट्रपति आमंत्रित को शपथ दिलवाएं और आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, आप सभी लोग खड़े हो जाएं स्वच्छता के लिए, स्वच्छता शपथ के लिए पोजीशन में। आदरणीय प्राचार्य महोदय। सभी लोग अपना मैडम के साथ दोहराएंगे। मैडम के महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, महात्मा गांधी ने उसमें सिर्फ इस भारत राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ व विकसित देश की कल्पना। महात्मा गांधी ने गुलाम जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हम सब शपथ लेते हैं कि हम स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहें और उसके लिए अपना पर्याप्त समय दें। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छता के इस संकल्प को हम चरितार्थ करें। हम न गंदगी करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। सबसे पहले हम स्वयं से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से और अपने कार्यस्थल से शुरुआत। ये मानते हैं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, इसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते। इस विचार के साथ मैं गाँव-गाँव और गली-गली स्वच्छता भारत मिशन का प्रचार करूँगा। आज शपथ लेते हैं कि हम अन्य व्यक्तियों से भी यह संकल्प करवाएंगे कि वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें और इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगी। हमें मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया एक कदम हमारा पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। भाषण होना चाहिए। अब मैं धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करूंगा कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें। नमस्कार सभी को, समस्त उपस्थित अभिभावकगण, विद्वत शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम आप सबको ढेर सारी बधाई हमारी गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म तिथि के अवसर। यह दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्व का है। केवल हम भारत का ही नहीं कहें, पूरे विश्व में इस दिवस को उत्साह लगन के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में हम गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे विद्यालय द्वारा छोटी सी प्रस्तुति की गई प्रयास रहे। इस वैश्विक महामारी के दौर में
इतनी लगन और इतने उत्साह के साथ अभिभावकों के माध्यम से हमारे बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। हमारे शिक्षकों के छोटे छोटे प्रयास हैं। आशा है उसमें छोटी छोटी जो गलतियां हुई आप सभी माफ करेंगे। सभी से यही अनुरोध है और सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप सब अपने जीवन को एक बहुत ही संयम ढंग से आगे बढ़ाएं। हमें एक दौड़ में शामिल नहीं होना है। गति हमारे जीवन को सही दिशा में नहीं ला सकती। हम अपने जीवन की गति को संयत करते हुए, स्वस्थ रहते हुए आगे बढ़ें। स्वस्थता में केवल हमारी शारीरिक स्वस्थता नहीं, हमारी मानसिक स्वस्थता भी शामिल। और इस परेशानी के दौर में तो हमारी मानसिक जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, उनसे हमें अपने को दूर रखना है, क्योंकि चिंता हमारे शरीर को खा जाएगी। तो हमारे शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को हम परेशान करें। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि इस समय हम अनावश्यक चिंताओं से अपने को दूर रखें, अपने सही लक्ष्यों के लिए प्रयासरत रहें और जो भी हमारे द्वारा कार्य हो रहे हैं उनको एक आत्मविश्लेषण के रूप में हमेशा आगे रखते हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक ताकत ही हमारा संबल है। जब हम अपने को अंदर से मजबूत रखेंगे तभी हम अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ और मजबूत बना पाएंगे। जहाँ वातावरण की बात आती है तो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम स्वच्छता पर बहुत ध्यान दें। चलते चलते हम थूक देते हैं और यदि कोई हमें टोकता है तो हमें खराब लगता है। हम कुछ खा रहे हैं, उसका पैकेट हमने वहीं सड़क पे फेंक दिया, हम सोचते हैं कि ये हमारा अधिकार है। नहीं, ये एक तरह से हम अपनी ही ताकत को कमजोर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मग्लानि हमें कमजोर बनाती है। जब हम कोई छोटे छोटे से एक्शन, आप सोचिए, जब आप इनको करते हैं वो सही है, आपको समझ आता है। जब आप गलत करते हैं तो आपको समझ आता है। तो जो गलतियां अगर हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को कमजोर बनाती है। तो हम इस बात को ध्यान दें कि हम ऐसे कार्यों को अपने जीवन की गति में जोड़ें जो हमें प्रसन्न रखें, हमारे आसपास के वातावरण को स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें, हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, हमसे जो प्रभावित हो रहे हैं, हमारे समाज के जो सदस्य हैं, वो सब भी प्रसन्न हो। तो इसके लिए हमें अपने मन को सुदृढ़ करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप सबसे यही अनुरोध है कि आज हमने जो स्वच्छता का संकल्प लिया है उसको अपने जीवन में आदत में अवश्य जारी रखें। स्वच्छता एक संकल्प तभी फलीभूत हो पाएगा जब हम इसको अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और स्वयं करने की जो आदत है ये अवश्य आपके व्यवहार में रहे। जब हम घर से निकलते हैं, हम अपने जूते पहनते हैं, स्वयं साफ करें। ये ना सोचें कि हमारे लिए कोई और इसको करे। हम ये इंतज़ार ना करें कि कोई हमारे कपड़ों को प्रेस करे। हम ये इंतज़ार ना करें कि कोई हमारे कपड़ों को धोएगा। तो अपने स्वयं स्वावलंबन बनने की जो प्रक्रिया है, यदि आप बचपन से ही अपनी आदत में डालेंगे, अपनी टेबल हमें व्यवस्थित करनी है, अपने बैग की तैयारी करनी है, अपनी नोटबुक्स हैं, हमारे पेन हैं, किताबें हैं, उनकी सफाई का भी हमें ध्यान रखना है, उनको सही ढंग से रखना है। हमारे बाग बगीचे हैं, हमारे आसपास छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पेड़ जो हैं, हम उन पर ध्यान दें, उनकी जीवंतता को भी महत्व दें। जहाँ हमारे पेड़ों की बात आती है तो हमारे दूसरे जीवन का पक्ष भी जुड़ता है। हमारे पशु हैं, हमारे पक्षी हैं, हम उनके प्रति भी बहुत ही सहानुभूति रखें, अपना संबल उन्हें प्रदान करें, क्योंकि वो हमें संबल देते हैं। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस पक्ष को भी ध्यान दें कि ये हम सबका कर्तव्य बनता है। तो जहाँ हम जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को अपने में शामिल करते हैं और सही ढंग से अपने साथ रखते हैं तो हम सही पथ पर चलते हैं और हमारे सही लक्ष्य की प्राप्ति में कहीं कोई भी कष्ट नहीं है।
गांधी जी भी मुख्यतः उन्होंने इसी बात को कहा कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, यदि वो आपके व्यवहार में परिलक्षित नहीं होगा तो उसका कोई मायने नहीं। भाषण देना, आदर्श सामने किसी के सामने प्रस्तुत करना, सुविचार बोलना, अच्छे विचारों को बोलना बहुत आसान है, परंतु यदि हम उनको अपने व्यवहार में, अपनी आदत में नहीं ला रहे हैं तो उसका कोई मतलब। ये बहुत ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, व्हाट वी से, व्हाट वी थिंक नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर। आप इसको बहुत ही अमल में लाएं और अपनी जिंदगी को बहुत ही स्वच्छ, स्वस्थ, संतोष के साथ जिए, तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे और आपकी प्रसन्नता आपके परिवार, समाज, संस्था और पूरे देश को एक सुख की अनुभूति प्रदान करे। एक एक व्यक्ति की प्रसन्नता बहुत मायने रखती है, लेकिन इस प्रसन्नता का आकलन भी बहुत जरूरी है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस तरह की सोच, इस तरह के कार्यों के साथ आगे बढ़ें कि हम खुद की प्रसन्नता के साथ साथ अपने आसपास की प्रसन्नता को अत्यंत महत्व। जब सामूहिक प्रसन्नता होगी तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर भी खुशी जाहिर होगी, आपकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए कि आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद तो सही दिशा, स्वस्थता, स्वच्छता के साथ जोड़े रखें और खुश रहें। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अपनी जिंदगी में छोटे छोटे लालच को अपने सामने ना आने दें, छोटी छोटी लापरवाही से अपने को दूर रखें, क्योंकि छोटी छोटी बूंदें ही एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करती हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे विद्यालय का प्रत्येक सदस्य, क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थी इन संकल्पों को अपने व्यवहार में उतारेंगे और अपने देश के लक्ष्यों को, अपने जीवन के लक्ष्यों को एक ऐसी दिशा प्रदान करेंगे कि हम सब प्रसन्नता के साथ, स्वस्थता के साथ आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव का हम सभी पालन करेंगे, हमारे विद्यार्थी भी पालन करेंगे और अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। धन्यवाद आपको पुनः इस अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए। अगली कड़ी में आप सभी को सदस्य द्वारा ब्लॉग में ब्लॉग मतलब होता है कि जो कूड़ा मिलता है एक छोटे से बैग में कलेक्ट करना है, तो निश्चित जगह है, तो में शामिल है। एक जो भी रहा है और दूसरा सफाई भी कर, तो इसी में हम साथियों ने में किया कुछ झलक हम देना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि वे प्रस्तुत करें ब्लॉग रन की कुछ झलकियां।
अच्छा ठीक। जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी आदरणीय प्राचार्य महोदया के मार्गदर्शन में ब्लॉग रनिंग कर रहे हैं। हम इसमें प्राचार्य महोदया को भी देख पा रहे हैं, वे भी हम सभी को उत्साहित कर रही हैं एवं स्वयं इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। त्रिपाठी सर सबसे सामने नजर आ रहे हैं, इनके पीछे दीपा मैडम भी हैं, मोनिका मैडम भी दिख रही हैं, हमारे शिक्षक साथी शुक्ला सर, क्रिया सर भी नजर आ रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। अधिकारी सर भी नजर आ रहे हैं, अधिकारी सर बैनर पकड़े हुए थे। सुमन मैडम, रूना मैडम, देवांगन सर, सोमा मैडम, मोनिका मैडम, ये सभी लोग बड़े ही उत्साहपूर्वक न केवल दौड़ रहे हैं बल्कि रास्ते में पड़े हुए कचरों को एक पेपर बैग में इकट्ठा कर रहे हैं और उसे एक निश्चित जगह पर फेंकेंगे। धन्यवाद आप सभी को। अंत में इस सफल मैं कार्यक्रम के आयोजन हेतु सर्वप्रथम पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय प्राचार्य महोदया को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसमें शामिल हुए सारे प्रतिभागी, पेरेंट्स एवं शिक्षक साथियों के प्रति मैं अपना आभार पूरे विद्यालय के ओर से प्रस्तुत करना चाहूँगा। इनके बिना
यह कार्यक्रम सफल नहीं होता। धन्यवाद सभी को। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।